اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سبزی فروٹ یونین کی کا صدر بابر خان، میرے ساتھ میرا جنرل سیکرٹری سمیع اللہ اور بوس بھائی کھڑے ہیں۔ آج عتیق چاند بھائی کا شکریہ جنہوں نے اتنے کم ٹائم میں، اور آپ کو پتہ ہے روزہ ہے، ہمیں ٹائم دیا، بہت مشکور ہیں آپ کے۔ آج لائف آنے کا مقصد یہ تھا کہ کافی دن ہو گئی تھی کہ عوام سے بھی ہم تھوڑے سے کنارے سے تھے۔ روزہ ہے، ہر بندہ روزے رکھتا ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے عبادت کرے، اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت کی دعا کرے۔ میں یہاں پہ اپنے دکاندار بھائیوں سے تھوڑا ملتمس ہوں کہ میرے جتنے دکاندار بھائی ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے فروٹ اور سبزی کا سیزن ہے، بعض لوگ سیزن بنا لیتے ہیں۔ میں ان کو کریکٹلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری بات کان کھول کے سنیں۔ اگر ایک چیز آپ کو سرکاری ریٹ کے سے اوپر وارہ نہیں کرتی، اگر سرکاری ریٹ اس چیز کا 200 روپے ہو، آپ 250 روپے سیل کر رہے ہیں، تو بالکل وہ چیز اگی میں نہ لائیں، نہ بیچیں، مہربانی کریں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے غریب لوگ ہیں، سرکار نے جو ریٹ مختص کیا ہوا ہے اس پہ آپ کو بیچنا پڑے گا اگی میں۔ دوسری بات یہ ہے، کمپرومائز کریں لوگوں کے ساتھ، روزہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، لڑیں نہیں لوگوں کے ساتھ اس بازار میں، اخلاق سے پیش آئیں لوگوں کے ساتھ اس بازار میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے، انسان ہے۔ لوگ آتے ہیں بازار میں آپ سے سودا لینے کے لیے، آپ سے پھل فروٹ سبزیاں خریدنے کے لیے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، جن کا بس نہیں ہوتا، کوشش کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیلے کس طرح ہیں درجن، لے جائیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس بابا یا اس شخص نے پوچھ کے گیا ہے، اس سے پوچھ تو لیں، بابا آپ نے پوچھا ہے، آپ لے کیوں نہیں رہی؟ اتنی آپ میں ہمت ہوئی ہے کبھی؟ لیکن ہمارا کام صرف تنقید کرنا ہے، خالی تنقید کرنا، تنقید نہ کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ تنقید کرنے سے پہلے اس چیز کی مکمل جانچ پڑتال کریں، اس کے بعد تنقید کیا کریں۔ ہم تو نماز کے لیے پہلی صف میں پہنچ جاتے ہیں، پہلی صف میں کہ نماز نہ قضا ہو جائے، کیونکہ روزہ ہے اور نماز رہے گی تو یہ سخت گناہ ہے۔ لیکن 100 کی چیز جب ہم اگی کے تاجر 200 میں بیچیں گے، یہ گناہ نہیں ہے؟ جب آپ دودھ میں پانی ڈالو گے، یہ گناہ نہیں ہے؟ جب آپ خالص چیز کو مکس کر کے بیچو گے، یہ گناہ نہیں ہے؟ جب آپ رمضان کو سیزن سمجھو گے تو یہ گناہ نہیں ہے؟ غیر ملک ہم جو کہتے ہیں کافروں کے ملک ہیں، وہاں پہ رمضان میں 50% ڈسکاؤنٹ لگ جاتا ہے، اور خدا کی قسم ہمارے پاکستان میں چیز 200 کی پہنچ جاتی ہے، 200% سے اباؤ کر جاتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ اب ہم اپنے اعمال کو بھی تو دیکھیں۔ نماز کے بھی تو میں نے کہہ دیا ہم پہلے جاتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کو نہیں جاتے کہ غریب ہے شام کو میں نے تو اپنے بچوں کے لیے افطاری لے کے گیا ہوں، لیکن میرا جو پڑوسی ہے وہ افطاری کرے گا؟ ہم نے کبھی پوچھا ہے؟ عمرے کے لیے تو ہم جاتے ہیں سعودی عرب، حج کے لیے تو ہم جاتے ہیں، اصل عمرہ حج تو یہی کر کے دکھائے نا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم زمین والوں پہ رحم کرو، میں تم پہ کروں گا۔ ہم نے زمین والوں پہ رحم چھوڑ دیا ہے تو اللہ نے ہم پہ رحم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا مہربانی کریں، رمضان ہے، کوپریٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سب سے بڑی بات کوپریٹ ہے۔ انشاءاللہ ہم نے جس حد تک تھا کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ روڈوں کو ہمارے دیکھیں، ہم نے کافی کلیئر کیا ہے، ادارے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، شکریہ ہم ادا کرتے ہیں اپنی پولیس کا، اپنے ٹی ایم اے اہلکاروں کا، اے سی صاحب کا۔ اے سی صاحب بھی اپنا ورک کر رہے ہیں، بازار میں پھرتے ہیں۔ انشاءاللہ 5-10 روپے کی اگر ریٹ کے ساتھ، میں نے پہلے اپنے دکانداروں کا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوا تو انشاءاللہ ہم جائیں گے، اے سی صاحب سے بات بھی کریں گے۔ لیکن اگر 20 روپے 30 روپے کلو کے اوپر سے ہوا تو خدا کی قسم وہ بندہ، میں عوام سے کہتا ہوں پہلے ہمیں ہماری یونین کو بتائیں، ہم سخت سے سخت ایکشن اس دکاندار کے خلاف لیں گے، پھر اداروں کو ہم بتائیں گے کہ کیسے بیچتے ہیں، یہ ناجائز منافع خوری یہ کیسے کرتے ہیں۔ اسی لیے میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کوپریٹ کریں میرے دکانداروں کے ساتھ، دکانداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کوپریٹ کریں ہمارے عوام کے ساتھ۔ عوام بھی ہماری ہے، دکاندار بھی ہمارے ہیں، اس لیے رمضان ہے، خوشی سے، جیسے آپ سمجھتے ہیں یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، شیطان باندھ لیے جاتے ہیں، اس لیے مہربانی کریں اپنے شیطان کھلے نہ چھوڑیں اس بازار میں نا، شیطان باندھ کے آئیں۔ میں نے کافی لوگ دیکھے جو لڑنے کے لیے بازار آتے ہیں، مہربانی کریں لیکن لڑیں نہیں بازار میں۔ ہم اکثر اس بندے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں جو مجبور ہوتا ہے، اچھے بندے کو تو ہم بھی ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ بندہ آگے موٹا ہے، پتلا ہے، کیسا ہے، تو مہربانی کریں تھوڑا کوپریٹ کریں لوگوں کے ساتھ۔
मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अजीम महीना है, बड़ा बरकतों वाला महीना है। आज 7वां रोज़ा है और पता ही नहीं चलता रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। इसीलिए इबादत के साथ अपने अमाल को भी ठीक करना चाहिए। इबादत के साथ अपनी जो तिजारत है इसको भी ठीक करना चाहिए। इबादत के साथ अपने जितने पड़ोसियों के साथ मामलात हैं, रिश्तेदार, ये भी ठीक करने चाहिए। खाली ये नहीं है कि मस्जिद दौड़ो और नमाज पढ़ के आ जाओ, ये नहीं है। अमाल को भी अपने देखो। बाज़ार में अभी मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी मंडी है, मैं भी बाज़ार में छोटा सा ताजर हूँ, लेकिन अगर हम भी 100 की चीज़ 200 में सेल करेंगे तो ये मैं समझता हूँ मैं नमाज पढ़ने का मुझे कोई हक नहीं है। क्योंकि रमज़ान में अगर देखा जाए तो हर बंदे को अल्लाह अच्छे से अच्छा खिलाता है, अच्छे से अच्छा पिलाता है। जिस बंदे की सोच भी नहीं होती अल्लाह उधर से देता है। हर बंदे को शाम को अल्लाह देता है। लेकिन यार खुदारा आप भी थोड़ी सी अपना हिस्सा भी डालो यार। 11 महीने हम कमाते हैं, 1 महीने ज़कात तो हम देते हैं, खैरात तो हम देते हैं, सदकात तो हम देते हैं। कहाँ से देते हैं आप? इस महीने सवाम से ही लेके आपने देने ना यार। माल को हलाल करो ताकि पता चले लोगों को भी कि हमने ज़कात दिए, हमने खैरात दिए, हमने सदकात दिए, है ना। अस्सलाम। अच्छा बाबर भाई, एक सवाल जहन में आ गया ज़िमनन चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपकी, शिकायत डेस्क जो यहाँ पे लगा हुआ है उगी में, तो उस हवाले से अभी तक आपके सब्जी फ्रूट के जो दुकानदार हैं किसी की कोई शिकायत आई है? नहीं, अभी तक माशाल्लाह कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि मैं खुद बहैसियत एक जिम्मेदार बंदा हर दुकानदार के पास जाता हूँ और मैं हर एक दुकानदार को ऐसा गाइड करता हूँ जैसे माँ अपने बच्चे को गाइड करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा गाइड करता हूँ कि कोई जुल्म ना हो जाए, कहीं महंगा सौदा ना बेच जाओ। मैं बड़ा पीरियड इनका लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शिकायत डेस्क पे अभी तक हमारी कोई भी ऐसी शिकायत मौसूल नहीं होगी। अगर मौसूल भी हुई है तो इंशाल्लाह शिकायत डेस्क वाले भी हमें बताएं, अवाम भी हमें बताए। इंशाल्लाह हम अपने इदारों से पहले उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, जो हमारी यूनियन लेती आई है और लेगी इंशाल्लाह सख्त से सख्त एक्शन। बाकी अगर और चीज़ें मैं डॉक्टर साहब को आपको बताऊं, बाजार में तो इन पे थोड़ा सा जैसे गोश्त हो गया, मुर्गियाँ हो गई, जैसे और ज़रूरियाती चीज़ें, आटा हो गया, बेसन हो गया, खजूरें हो गई। अभी 15वें रोजे के बाद अभी कपड़ों का सीजन है, शूज़ का सीजन, इन चीज़ों पे थोड़ा गौर करें तो मैं कहता हूँ हमारे जितने इदारे इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान अपना दें तो बेहतर होगा। बाकी सब्जी फ्रूट तो अल्हम्दुलिल्लाह 7वां रोज़ा है, इस बार हमारी सब्जी जितनी सस्ती है, हमारा फ्रूट थोड़ा अलबत्ता 10वें 12वें रोज तक महंगा रहेगा इंशाल्लाह। बाकी हमने उगी में कई मंडियों ने इस बार फ्रूट का भी बाइकाट किया हुआ है ताकि महंगा फ्रूट है, गरीब लोग नहीं खा सकते। इसीलिए सब्जियां जो है सब्जियां वो तो काफी हद तक सस्ती है। आज मेरा ख्याल 2 किलो 100 का टमाटर है, 2 किलो 100 का आलू, 2-3 किलो 100 का है, प्याज 2 किलो 100 का है। मैं कहता हूँ मटर, खीरा, सब कुछ। मैं कहता हूँ कोई ऐसी चीज नहीं है डॉक्टर साहब जो गरीब की पहुंच से दूर होगी। इसीलिए मैं अपने जो ताजर है शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का सबसे पहले कि रमजान में, वरना आलू किधर और प्याज किधर और धनिया किधर, और ये बड़ी महंगी होती थी, आवाम की पहुंच से बड़ी दूर होती है। इस दफा तो मैं कहता हूँ बड़ा एक अच्छा काम हुआ, बड़ा अच्छा। हम 11 महीने कमाते हैं, शुक्र अदा करता हूँ मैं अल्लाह का। इस हाल पे भी अल्लाह का शाकर है। बाजार में अगर गरीब आवाम खाएगी, गरीब बंदा खाएगा, मैं खुश हूँगा, क्योंकि रिस्क देने वाली जात अल्लाह है। अल्लाह ने एक बंदा आपके पीछे भेजा हुआ है तो उसको आप गाइड करो, जो कुछ है आपके पास उसको दो। आपकी रिस्क में भी बरकत अल्लाह डालेगा, आपके सब कामों में अल्लाह। मैं समझता हूं कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है खाली जीने के लिए भेजा है? ये बताएं मुझे। अल्लाह ने हमें भेजा एक मकसद के लिए। हम हर दिन अपने लिए जीते हैं। मैं डॉक्टर साहब अपने पहले भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा था कि हर दिन अपने लिए जीते, एक दिन किसी और के लिए जीते। कितना मजा। हम हर दिन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं। एक दिन आपने सोचा है किसी और के बच्चे भूखे होंगे, इसके लिए कुछ करते हैं। क्या बात। हर बंदा अपने तरीके से, अपने मामलात से जितना हो सके करें इस रमज़ान में। गरीबों का ख्याल रखें इस रमज़ान में, गरीबों को तरस खाएं। लेकिन हमारे जितने दुकानदार हैं ताजर के, उगी के ताजर, हमारी जितनी बरादरी है, ये रमज़ान में सीजन लगाते हैं, तो सीजन ना लगाएं। हम मेहरबानी करते हैं इनसे, मेरी आजिज़ाना अपील है इनसे, आजिज़ाना अपील है इनसे। खुदा की कसम अल्लाह दूसरी तरफ से आपसे निकाल लेगा।
मैं यकीनन ये कहता हूँ जो बंदा नाजायज मुनाफाखोरी करता है अल्लाह जैसे भी करता है उससे निकाल लेता है। इसीलिए मेहरबानी करें, नाजायज मुनाफाखोरी न करें और जितना ताउन होगा हमारी सब्जी फ्रूट की तरफ से इंशाल्लाह मैं आवाम के साथ करूंगा, मैं इस बाजार में रिलीफ दूंगा इंशाल्लाह। ये मेरा वादा रहा डॉक्टर साहब आपसे कि 30वें रमजान तक जो चीज भी महंगी होगी इंशाल्लाह हम सरकारी रेट से उसको 20 रुपए नीचे करके बेचेंगे सब्जी फ्रूट की इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। बाबर भाई जिस तरह शिकायत का हवाला दिया तो बाज लोग ये है कि वो थोड़ा घबरा जाते हैं, यार अगर मैं किसी की शिकायत करूंगा तो मेरा ताल्लुक खराब हो जाएगा। तो अगर आप अपना नंबर पर्सनली जो आपका नंबर है आप अपना नंबर बताते हैं, अगर कोई आपसे रब्ता करेगा तो जाहिर सी बात है उसका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा और उसकी शिकायत का अजाला भी होगा। तो अपना नंबर अगर बता दें। 031059203662। फिर से बता रहा हूँ 0310 59 20 362। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है, मेरा कांटेक्ट नंबर भी है। अगर एक बंदा मेरे साथ कांटेक्ट करेगा वो मुझ पे एहसान करेगा, उसका नाम हम सही राज में इसलिए रखेंगे अगर उसने आपके साथ जुल्म किया है तो पता नहीं 50 के साथ और के साथ उसने जुल्म किया होगा, इसलिए आपका नाम बिल्कुल सही राज में रखा जाएगा और आप हमें उसकी शिकायत देंगे इंशाल्लाह फौरी आपको उस चीज का इल्म होगा कि वाकई यूनियन ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है और इंशाल्लाह बराबर आपका अजाला होगा, मौके पे अजाला होगा इंशाल्लाह। जो चीज आपको गंदी दी गई है मौके पे चेंज होगी, महंगी दी है मौके पे आपको पैसे वापस होंगे इंशाल्लाह। ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत साहब बात करी दो तरह का कर दें। जी जी करो करो, ये कुफारनी ज़बान में नहीं है, लाइव चल रहा है, बात करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरा मनना उस्ताद वतील भाई उस्ताद रागले ज़मीन गरीब खाने था और इंशाल्लाह बाबर बार टोल खबर कर दी। बाबर भाई मूंग द खबर उस खबर अपरे खने था दे मिसाल दी जरन दे बयान खती और इंशाल्लाह बाबर चुकुम खबर कर दी, खस्ता खबर कर दी और रोजाना जोजम अल्लाह सामड़ा दी शिकायत स्टूलता जो पखपल गोरम माशाल्लाह। गुड। शपगमा रोजा था मशपग रज मुतातर तले कतले इच्छा शिकायत न रागल और कोशिश मूंग अदा कर दे ची मूंग लदे 50 दिन बचकी शल दे बचकी खुद खल को नगरे दी चली और आइंदा लपार मूंग अदा कोशिश कर दे चे जमूंग लग दिवशी और नोर को महंगाई होता उसका पता द शाता नाराजी अगर यो सड़े राजी मूंग तो गुस्से की किम देर खालग जो बजाते खुद पखपल रेड़े लगोमा और मेकमे वालम राजी का मूंग दबाव की दा खबर मूंग तकई ची यार तासो अगर कर दे अगर दा ग्रानी मूंग पैदा कर दा नो ब्या खो तो वेल शी मंडो वाल तो दिला शी सार दे केला गुरी सेब गुरी माल्टा दे गुरी आया कुम रेट मने दा प्रूजी मूंग दे खैर दे 10 रुपए किलो डिस्काउंट राखी मूंग अगर 10 किम 15 दे आवाम ल नीमो रखो सही। तासो मकबल नंबर हुआ है तो तासरा डायरेक्टली रब्ता कीजिए बाबर भाई अकबल नंबर और जमूंग इंशाल्लाह दा नंबर दे 0346 41 40 42 4। अच्छा डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करवाना चाहता हूँ आपको, हमारी की तासीर जी जी यहाँ पे कंट्रोल रेट और मजिस्ट्रेट नहीं होता। हमारा जो रेट है वो मनसेरा से निकलता है, मजिस्ट्रेट वहाँ पे बैठता है, वहाँ से वो सुबह रेट निकालते हैं। जैसे ये रेट का मसला होता है ये मनसेरे वालों के साथ इनका ताल्लुक है, मनसेरा की इंतजामिया के साथ, क्योंकि वो हमें रेट लिस्ट देते हैं जैसे वो 5 रुपए की में उससे अभाव बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर कोई भी मसला हो, केला है, सेब है या इवन जो कुछ भी है, अमरूद है, जो कुछ भी है, किसी चीज का भी कोई मसला है तो मैं अपने असिस्टेंट कमिश्नर उगी साहब से भी और अपना तहसीलदार साहब आजकल रियाज साहब बाजार में घूम रहे हैं, इनसे भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मसला है तो आप इंतजामिया मनसेरा से रब्ता रखेंगे, क्योंकि ये मनसेरा मंडी वाले होते हैं और मजिस्ट्रेट साहब वहाँ बैठा होता है तो ये रेट वहाँ से निकलता है। पिछली दफ़ा मेरा ख्याल से रमज़ान से 10 दिन पहले डॉक्टर साहब अमरूद 350 का किलो पड़ रहा था दुकानदारों को और सरकारी रेट था 200। कितना था? 200। 2800 रुपये टोकरी थी गालिबन, मेरे ख्याल से टोकरी में 9 किलो या 8 किलो अमरूद था। तो फिर मैंने मनसेरा हमारी जो यूनियन है उनसे मैंने रब्ता किया, उन्होंने मियाँ साहब से मुझे मुकम्मल यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह कल मजिस्ट्रेट साहब आएगा और रेट हम ठीक करेंगे। तो मैंने देखा कि उन्होंने दूसरे दिन रेट ठीक किया। तो इसीलिए जितना प्राइस कंट्रोल का मामला है ये मनसेरा से, हम कोशिश करेंगे कि उगी में सरकारी रेट से 10 रुपए नीचे सेल करें, लेकिन अगर रेट ज्यादा है तो ये मनसेरा इंतजामिया इसकी जिम्मेदार है। वस्सलाम। थैंक यू।